Hello students, this is Raviraj and you are watching our YouTube channel that is Exercise GNE. So in the last lectures we have already completed matrices and determinants, and now we are moving on to another important chapter, and that is ITF. Okay, ITF basically stands for inverse trigonometric function. Okay, but as we start inverse trigonometric functions, let us study some points. Yeah, let us remember some points about inverse function. Let us recall some points as we have already studied in class 11th about the inverse functions. Okay, relation and function हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं. And what is relation and a function? We know that if we have two sets, let us consider we have two sets. यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं. For example, we have 1, 2, 3, 4, 5 over here, and 1, 2, 3, 4, 5, 6 over here. Okay, and this is set A and this is set B, and a function is defined from A to B. We have a function that has been defined from A to B. एक function हमने define किया set A से set B तक, and that function is f of x is equals to x plus 1. So as we put different values of x of set A, हम हर एक element of set A के लिए यदि हम x की value रखेंगे तो we will get certain value for the y or f of x. कुछ values of y मिलेंगी या f of x मिलेगा which is in the set B, right? In fact, if we see what is the relation and what is the function, मान लीजिए आपको सबसे पहले हम function का definition देखते हैं कि यदि यहाँ पे आपके पास कुछ elements हैं और इस set में भी कुछ elements हैं, ठीक है? We have two sets. Let's say this is set x and this is set y. Okay. यदि one set x का हर एक एलिमेंट set x का हर एक एलिमेंट set y के किसी एक एलिमेंट को set x का हर एक एलिमेंट set y के किसी एलिमेंट को टेंड करता है, यदि उसको इमेज बनाता है, then we say that is a function. Means if one, let's say one का जो इमेज है वो 1 है, 2 को टेंड कर रहा है, 3 भी 2 को टेंड कर रहा है. In that case we say a function. इसको हम function बोलते हैं because for every element of set x के हर एक एलिमेंट के लिए there is an image in set y. उसका एक इमेज है in set y में एक इमेज है, ठीक है? If we take another example, let's say 1 2 3 and here we have again 1 2 3. यदि 1, so now what we see over here कि 2 का एक इमेज है, 3 का एक इमेज है, but 1 के 2 इमेजेस है, that is 1 and 2. Hence it is not a function. क्योंकि function क्या कहता है that every element in set first set जो भी पहला set होगा, ठीक है? Every element in the set 1 या set x should tend towards an element in the set b. ठीक है? वो किसकी तरफ टेंड करना चाहिए बेटा? सेट बी में किसी भी एक एलिमेंट को टेंड करना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे 1 कितने एलिमेंट्स को टेंड कर रहा है? 2. Hence it is not a function. Okay, similarly if I take 1 2 3 and again 1 2 3, 1 1 को टेंड कर रहा है, 2 3 को टेंड कर रहा है. Okay, now this is again not a function because what does function definition says? Function का जो definition है क्या बोलता है? That for every element in the set A, for every element in the set x or every element in the set A, there must be element in set B. हमेशा एक element होना चाहिए set B में such that f of x is equals to that particular value, that is y. ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि 1 का एक वैल्यू है, 2 किसी का एक इमेज है, but 3 का इमेज नहीं है. Hence again this is not a function. So what function means that every element, इसका हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए. Every element in set A should have an image and every element in the set A should have only one image. इसका हर एक का एक इमेज होना चाहिए और हर एक एलिमेंट का कितना इमेज होना चाहिए? सिर्फ एक होना चाहिए. What we see over here, यहाँ पे से कितना इमेज है बेटा? 2 इमेज है. What we see over here कि यहाँ पे 3 का कोई इमेज ही नहीं है. Hence these two are not function. We don't care about set y. Set y के बारे में हमें चिंता नहीं करना है कि यहाँ पे देखो 2 भी 2 को पॉइंट कर रहा है, 3 भी 2 को पॉइंट कर रहा है, right? So here what we say 3 का जबकि कोई 3 किसी का इमेज ही नहीं है. So इस सेट के बारे में आपको कंसीडर नहीं करना है. The set which we need to be take care is about set x का, ठीक है? इसका हर एक एलिमेंट, for every element in set x there should be one image that the element tends. ठीक है? इस हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए और इसके हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, right? So what we say, if we put different values of x, we will be getting different values of y or f of x. यदि मैं x की वैल्यू मान लूंगा तो यहाँ पे 1 किसको टेंड करेगा बेटा? बेसिकली 1 किसको पॉइंट करेगा? 2 को पॉइंट करेगा. 2 किसको पॉइंट करेगा? 3 को पॉइंट करेगा. 3 किसको पॉइंट करेगा? 4 को पॉइंट करेगा. 4 किसको पॉइंट करेगा? 5 को. और 5 किसको पॉइंट करेगा? 6 को. Yes or no? Now after that what we used to do, हम डिफाइन करते थे
कोडोमेन एंड रेंज को, ठीक है। डोमेन क्या कहलाता है बेटा? सबसे पहले हम इधर देखते हैं, these all are the relations। पहली बात तो ये है कि यदि यहाँ पे सिर्फ एक भी यदि डिफाइन होगा, सिर्फ एक किसी को भी पॉइंट करेगा तो वो क्या कहलाता है बेटा? रिलेशन कहलाता है, ठीक है। यदि ये किसी से बहाने से यदि कनेक्टेड है देन वी से इट एज अ रिलेशन, ओके। चाहे वो एक दो इमेज दे या एक कोई भी इसका एक एलिमेंट चार इमेज दे या कोई ना दे, दैट डजंट मैटर ओवर हियर, ठीक है। बस एक रिलेशन डिफाइन होना चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट के होने से भी हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी सी ओवर हियर, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि डोमेन क्या कहलाता है बेटा? डोमेन वो होता है द सेट या एक ऐसा सेट होता है जिसका एक इमेज होता है, द सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट x। वो सेट x आपके पास, वी हैव अ सेट x, राइट। अब इनमें से जो एलिमेंट का इमेज है उनका जो सेट होगा उसको हम डोमेन बोलते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डोमेन क्या होगा बेटा? सेट x के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसका एक इमेज है, सेट x के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसका इमेज है उसको आप क्या बोलते हो? डोमेन। तो यहाँ पे 1 2 3 के इमेजेस हैं, तो डोमेन इसका क्या होगा? 1 2 3। इसका डोमेन अगेन क्या होगा? 1 2 3, क्योंकि 1 का भी इमेज है, 2 का इमेज है, 3 का भी इमेज है। यहाँ पे डोमेन क्या कहलाएगा? ओनली 1 एंड 2। इसलिए क्यों? क्योंकि 3 का इमेज ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका डोमेन क्या कहलाएगा बेटा? 1 एंड 2, ओके। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो आपका डोमेन होता है, जिन एलिमेंट जो एलिमेंट्स का एक इमेज होता है उनका सेट क्या कहलाता है बेटा? दैट सेट इज कॉल्ड एज डोमेन। यहाँ पे ये हमेशा प्रपोज रहेगा कि जो पहला सेट है फंक्शन के लिए, पहला सेट है उसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट ऑफ सेट y को पॉइंट करेगा, नहीं तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। यदि मान लो 5 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा तो ये फंक्शन ही नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा? जो पूरा का पूरा सेट x है, जो पूरा का पूरा पहला सेट होता है वही आपको क्या होता है? डोमेन। बिकॉज़ फंक्शन का तो डेफिनेशन यही है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A should point या should indicate one element in set B। एक एलिमेंट को करना चाहिए और सिर्फ एक एलिमेंट को करना चाहिए, ये सुनो। सो इसमें यदि कोई भी एक एलिमेंट नहीं करेगा तब तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। मतलब इसके लिए जो डोमेन होगा वो पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कोडोमेन क्या कहलाता है बेटा? द सेट B को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास रेंज। रेंज क्या होता है? दोज वैल्यूज ऑफ y, जो भी आपका सेट B रहेगा उनके वो वैल्यूज जो किसी ना किसी के इमेज है, जो किसी ना किसी के इमेज है, which are image of anyone, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट में। तो देखो वन इमेज नहीं है, मतलब ये आपका डोमेन में नहीं आ जाएगा। इमेज कौन कौन है बेटा? 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा रेंज भी क्या हो जाएगा? बोलिए दैट इज 2 3 4 5 एंड 6। दिस विल बी द रेंज। ये रेंज कहलाएंगे आपके। समझ में आई बात? तो ये था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया फंक्शन। नाउ लेट अस गो टू इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। अब यदि आपने ये फंक्शन डिफाइन किया तो इसका इनवर्स भी डिफाइन कर सकते हो। इनवर्स डिफाइन करने के लिए यदि आपका एक फंक्शन डिफाइन होता है a से b तक, तो जो इनवर्स ऑफ द फंक्शन होता है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम b टू a। वो कहां से कहां तक डिफाइन होगा बेटा? b से लेकर के a तक। मतलब यहां पे जो आपको बनेगा दैट विल बी, ठीक है। यहां पे जो आपको बनेगा दैट विल बी b और यहां पे जो बनेगा दैट विल बी a, ठीक है। सो यदि अब हम देखें फंक्शन क्या था? f of x = x + 1, f of x = क्या था बेटा? x + 1, राइट। यदि मैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, मतलब बेसिकली दिस इज y of x + 1, है ना। तो यहां पे आपके पास क्या था? इसको मैंने क्या बोला? y था इन द टर्म्स ऑफ x। यदि मैं f of x को y बोल रहा हूं तो आपके पास क्या था बेटा? y इन द टर्म्स ऑफ x, यस और नो। अब यदि आपको इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलिए दैट विल बी y - 1। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? y - 1, यस और नो। अब ध्यान से सुनिए, यदि यहां पर 1 है, इफ वी हैव 1 ओवर हियर, तो यदि ये जो मैं आप कह रहा है दिस ऑल आर द y, राइट। ये सारे के सारे, क्योंकि ये x था ये y था, तो अभी ये वाला y हो जाएगा सारा और ये वाला अगेन x हो जाएगा। तो यदि मैं y की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 - 1 कितना होगा बेटा? 0। और 1 किसी भी 0 को, यहां पे तो 0 है ही नहीं, यहां पे 0 है नहीं, मतलब 1 किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा। 2 किसको पॉइंट करेगा? 2 - 1 दैट इज 1 को। 3 किसको पॉइंट करेगा? जो 3 है, यदि y की वैल्यू 3 रखोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2। सिमिलरली इस तरीके से आएगा। सो बेसिकली ये इनवर्स ऑफ द फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं है, बिकॉज़ दिस इज नॉट अ फंक्शन। 1 किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। और यदि कोई भी, इफ यू हैव एनी एलिमेंट व्हिच डजंट हैव एनी इमेज, जिसका कोई भी इमेज नहीं होता है, हम ऐसे फंक्शन, उसको तो फंक्शन ही नहीं बोलते हैं। मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन डिफाइंड है लेकिन इनवर्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहां से 1 को हटा दिया, 1 को हटा दिया, तो अब मेरे पास क्या बचा? सबसे पहले
डोमेन तो वही रहेगा, वो डोमेन से ये हट जाएगा और रेंज से एज इट इज होगा। बट यहाँ पे जैसे आपने वन को हटाया, अब देखिए दिस इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज क्लियरली डिफाइंड फॉर दिस फंक्शन f of x equals to x plus 1। यदि मैं इसका कोडोमेन चेंज कर दूं तो इसका इनवर्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है देखिए, 2 किसको पॉइंट कर रहा है 1 को, 3 किसको पॉइंट कर रहा है 2 को, 4 किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट this set B points towards one element of set A and points only towards one element of set A, and this is the function। अब डिफाइन करते हैं हम डोमेन को। डोमेन क्या कहलाता है मतलब बताइए, डोमेन क्या कहलाता है? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है वो वैल्यूज, पहले सेट का वो वैल्यूज जिनका एक इमेज है। इनफैक्ट बेसिकली जो पहला वाला सेट होगा उसी को हम डोमेन बोलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास डोमेन कितना हो जाएगा बोलिए, 2 3 4 5 6, यस और नो। और कोडोमेन क्या कहलाता है बेटा, जो दूसरा वाला सेट है उसको हम क्या बोलते हैं कोडोमेन। तो यहाँ पे मेरे पास कोडोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यस और नो। और यदि मैं यहाँ पे रेंज देखूं तो रेंज क्या होता है, those values of set B, उन values of set B को लेते हैं जिसका एक प्री इमेज होता है। This is 1 is the image of 2 but 2 is the pre image of 1, ठीक है। तो जिसकी तरफ कोई भी एक पॉइंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे रेंज कितना हो जाएगा बोलिए, that is 1 2 3 4 5। Now what we see over here, हमें यहाँ पे क्या दिखता है ध्यान से देखिएगा कि जो f के लिए फंक्शन के लिए डोमेन था 1 2 3 4 5, वही f इनवर्स के लिए रेंज बन गया 1 2 3 4 5। और जो रेंज था फॉर f वो क्या बन गया बेटा, डोमेन बन गया किसका, f इनवर्स का। मतलब यदि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, इफ यू हैव एनी फंक्शन जिसका डोमेन d और रेंज r है, जिसका डोमेन क्या है d और रेंज क्या है r, तो यदि आपके पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डिफाइन करोगे तो उसका डोमेन क्या कहलाएगा बेटा, इसका डोमेन क्या बन जाएगा रेंज, और रेंज क्या बन जाएगा डोमेन। सो आई डिड f इनवर्स इज डिफाइंड, ठीक है। सो आई डिड कि f इनवर्स क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अब मुझे बताइए यदि मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम हो तो थोड़ा देखेंगे कि क्या होता है। उसी तरीके से हम बताएंगे कि यदि किसी भी फंक्शन का, बेसिकली ये जो पूरी कहानी है, पूरी कथा है, इसलिए सुनाया था, सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि यदि आपके पास एक फंक्शन है जिसका रेंज r है, डोमेन d है, जिसका रेंज, इफ यू हैव अ फंक्शन जिसका डोमेन d और रेंज r है, यदि आप f इनवर्स डिफाइन होता है तो उसका जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम डिफाइन करते हैं, लेट अस कम टू अ टॉपिक दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। व्हाट वी सी, देखिए आप क्या डिफाइन करते हो बेटा, व्हाट वी डिफाइन इज लेट्स से मेरे पास यदि है sin थीटा इज इक्वल्स टू x, वी हैव 6 ऑपरेटर्स राइट, sin cos tan cos x secant cot, ठीक है। और इनके जो इनपुट्स होते हैं वो क्या होता है बेटा, जो इनके इनपुट होते हैं वो एंगल होता है। और क्योंकि हर एक ऑपरेटर, जो जितने भी मशीन्स हैं, ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, मशीन्स होते हैं, मशीन का एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। हर एक मशीन कुछ इनपुट लेके कुछ आउटपुट देता है, राइट। यहाँ पे भी जो हमारे मशीन से दैट इज sin cos tan cos x secant cot, इनका जो इनपुट होता है दैट इज थीटा और जो आउटपुट होता है वो होता है कोई भी एक रेशियो, एक पर्टिकुलर रेशियो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है। सो इफ वी डिफाइन sin थीटा इज इक्वल्स टू x, और जब sin इधर से इधर जाएगा, जब sin इधर से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, थीटा विल बी इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x। याद रखना, थीटा जब sin LHS से RHS में जाएगा तो क्या बन के जाएगा, sin इनवर्स। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन sin का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि sin विदाउट एनी इनपुट कोई काम का नहीं है। और जब sin को ऊपर ले जाओगे तो जो इंडिकेशन होता है दैट इज sin इनवर्स, ओके। अब याद रखें, हम हमेशा बोलते हैं कि cos थीटा का होल स्क्वायर लिखो या cos स्क्वायर का थीटा लिखो, होता सेम है ना। ऑल्दो दिस इज नॉट इक्वल टू, ये किसके इक्वल नहीं होता है बेटा, cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है। यस और नो, इतना चीज पता है। सो कभी भी यदि आपको ऐसा है कि sin x का इनवर्स और sin इनवर्स x बोल रहा है, सो दीस आर नॉट द सेम थिंग। यहां पे ये दोनों चीजें सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपको sin x का होल इनवर्स बोल रहा है, दैट मींस दिस विल बी 1 upon sin x, एंड 1 upon sin x का मतलब होता है cosec x, which is not equal to sin inverse of x, जो sin inverse of x के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इंडिकेशन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि sin inverse x का मतलब sin x का होल इनवर्स नहीं होता है। In fact, if we define that what is inverse trigonometric function, inverse trigonometric function क्या रिप्रेजेंट करता है, what does it represent? So basically वो हम क्या बोल सकते हैं, this is an expression, एक ऐसा expression है when in which the angle, ये जो क्या है बेटा एंगल है, ये क्या है एंगल है, एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू, एंगल को हम उसके वैल्यूज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली जैसे आपको पता है कि sin थीटा है तो वो एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपको बोला है sin इनवर्स ऑफ एनीथिंग है, sin इनवर्स ऑफ x है, sin इनवर्स ऑफ y है, sin इनवर्स ऑफ p है, sin इनवर्स ऑफ a है, b है, एनीथिंग
उसके वैल्यूज के टर्म्स में। ओके, सो थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x। याद रखिए कि कभी भी चाहे sin इनवर्स x हो, cos इनवर्स x हो, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मतलब ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड दैट बेसिकली गिव्स अ एंगल। किसके एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं? इट कैन बी पाई बाय 6, इट कैन बी पाई बाय 3, इट कैन बी पाई बाय 2, इट कैन बी एनी वैल्यू बट इट मस्ट बी एन एंगल। ये हमेशा क्या होगा बेटा? एक एंगल होगा। ठीक है, नाउ अब ध्यान दीजिए, जब हमने 11th में 10th में आप लोग sin cos tan cos x sec cot पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते हो अपना 90 डिग्री, राइट? जब हम 11th में आते थोड़े से बड़े हो जाते हैं एंड देन वी डिफाइन अ प्रिंसिपल वैल्यू। हम क्या डिफाइन करते हैं बेटा? वहां पे एक प्रिंसिपल वैल्यू डिफाइन करते हैं। ये सुनो, मतलब यदि ध्यान से सुनना, यदि मैं आपको बोल रहा हूं कि sin थीटा इज इक्वल्स टू, लेट्स से sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। ओके, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 1/2। इसका मतलब क्या है? sin 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। इनफैक्ट sin 150 का वैल्यू कितना होता है? sin 150 को आप क्या लिख सकते हो? दैट इज sin 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। जैसा और ऑल सिल्वर टी कप लगा दो, ASTC रूल लगा दो, तो 90 तो मीन चेंज होगा, दैट विल बी cos 60 एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव साइन आएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2। मतलब फॉर अ पर्टिकुलर, यदि आपके पास sin थीटा इज इक्वल्स टू x है, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके पास sin थीटा इज इक्वल्स टू x है, बट फॉर a fixed value of x, यदि मैं x की एक वैल्यू फिक्स कर दूं, if I fix a value of x, then we can have different values of theta, मुझे थीटा की अलग-अलग वैल्यूज मिल सकती है, राइट? बट हम कौन सा वैल्यू लेते हैं बेटा? याद करो, हम 11th में कौन सा वैल्यू लेते हैं? दैट इज अ प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू जनरल वैल्यूज होती है, हम कौन सा वैल्यू लेते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज द मिनिमम वैल्यू बिटवीन मिनिमम वैल्यू। हम क्या लेते हैं? मिनिमम वैल्यू लेते हैं। तो इनमें इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा बेटा? 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा फॉर sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, वो कितना होगा? 30 डिग्री। लेकिन इफ वी हैव sin थीटा इज इक्वल्स टू sin 30, यदि मेरे पास sin थीटा इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री है, देन वी कैन से कि जो इसका जनरल वैल्यू होगा, वो कितना होता है बेटा? बोलिए, दैट इज n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n थीटा, राइट? यस और नो? तो यहां से कितना आ जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू 30 डिग्री, दैट मींस पाई बाय 6। दिस इज द जनरल वैल्यू। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू हम क्या लेते हैं? 30 डिग्री, व्हिच इज कॉल्ड एज द मिनिमम वैल्यू। सो फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x, यदि हम x की एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, बट द मिनिमम ऑफ दोस विल बी कॉल्ड एज, उनका जो मिनिमम होगा उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। और जनरल वैल्यू का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? बोलिए, दैट इज n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो भी होगा उसके हिसाब से होगा सेकंड में। लेकिन यदि मैं थीटा की वैल्यू फिक्स कर दूं, इफ आई फिक्स द वैल्यू ऑफ थीटा, देन वी गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ x। तो हमें सिर्फ x की एक ही वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू कितना होगा बेटा? sin 60। sin 60 कितना होता है? दैट इज √3/2। सो व्हाट वी कैन जनरलाइज ओवर हियर, दैट फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x, यदि मैं x की वैल्यू को फिक्स कर दूं, वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, आउट ऑफ व्हिच द मिनिमम विल बी कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। जो मिनिमम होगा उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। बट फॉर द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ थीटा, यदि मैं थीटा की वैल्यू फिक्स कर दूं, देन वी हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ x। तब हमें x की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए। सो इतना समझ में आया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन एंगल। और क्या क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बेटा? sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x। ठीक है, चलिए। अब मुझे एक बात बताइए, इफ यू आर डीलिंग विद सच फंक्शंस, तो फंक्शन को मुझे डोमेन पता होना चाहिए, कोडोमेन पता होना चाहिए। इनफैक्ट यू नो द ग्राफ ऑफ sin x, cos x, tan x, cosec, sec x, cot। सो यदि मुझे इनका ग्राफ पता है, देन आई कैन फाइंड द ग्राफ्स ऑफ sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, cosec इनवर्स x एंड sec इनवर्स x। कैसे? यदि मैं sin इनवर्स, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इनवर्स फंक्शन का वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। सबसे पहले लेट अस सी अबाउट sin x। यदि मुझे y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ देखना है, ठीक है? इफ आई हैव टू सी द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू sin x, तो sin x का ग्राफ सबको पता है कि 0 से स्टार्ट होता है। इफ आई डिवाइड इनटू सम पार्ट्स, लेट्स से, ओके, सो व्हाट ग्राफ वी गेट फॉर sin x, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितना होता है बेटा? 1, और जो मिनिमम वैल्यू होता है दैट इज -1। यस और नो? और दिस इज 0, π/2 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, π पे वैल्यू इसकी फिर से 0 हो जाती है, -π/2 पे भी इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, और -5 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मींस इफ वी सी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का जो ग्राफ है sin x का, वो कुछ इस तरीके से आएगा। मैक्सिमम 1 तक जाएगा,
और मिनिमम कहां तक जाएगा बेटा -1 तक, मतलब कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, राइट। एंड एट -π/2 इसकी वैल्यू -1 होगी एंड π/2 इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। सो और यहाँ पे डोमेन और रेंज पे डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द डोमेन ओवर हियर, यहाँ पे डोमेन कितना होगा बेटा, बोलिए डोमेन कितना होगा, दैट इज डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो देखिए -∞ से लेकर +∞ तक, क्योंकि ये जो कर्व है ये तो इस तरीके से बढ़ता चला जाता है ना, ये तो कर्व बढ़ता चला जाता है, मतलब x के हर एक वैल्यूज के लिए sin x डिफाइंड है, यस और नो। मतलब इसका हर एक, यदि मैं इस लाइन को आगे भी प्लॉट करूं, इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन तो मुझे हमेशा एक वैल्यू मिलेगी एंड दैट विल बी इन बिटवीन -1 to 1, मतलब इसका डोमेन कितना हो जाएगा बेटा, डोमेन फॉर एंटायर रियल नंबर्स ऑफ x, रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड है, और इसका जो रेंज है वो रेंज कितना है बेटा, बोलिए दैट इज -1 से लेकर के 1 तक। इसका मतलब sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। अब हम इसी ग्राफ से बनाते हैं sin इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। व्हाट वी हैव ओवर हियर y इक्वल्स टू sin x है, तो यदि देखिए फंक्शन में बेटा y इक्वल्स टू sin x है, राइट, मतलब y है इन द टर्म्स ऑफ x। याद करिए वाला क्वेश्चन यहां पे किए थे। सबसे पहले मेरे पास क्या था, फंक्शन जो था y इक्वल्स टू x + 1 था, तो मैंने बोला फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, यस और नो। अब यदि मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू y - 1 एंड द फंक्शन f इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम b टू a। तो यदि मेरे पास यहां पे y इक्वल्स टू sin x है, तो सबसे पहले आपका y x के टर्म्स में था, तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे, व्हाट इज f इनवर्स। तो f इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज x इक्वल्स टू sin इनवर्स x, यस और नो, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसका मतलब अब ध्यान दीजिए x इक्वल्स टू sin इनवर्स होगा। इसका मतलब अब ध्यान दीजिए कि बेसिकली मुझे क्या करना है, इस ग्राफ को जो x एक्सिस पे है उसको y एक्सिस पे बनाना है, जो y एक्सिस पे है उसको x एक्सिस पे बनाना है। सिंपल, ध्यान से सुनिए फिर से, जो x एक्सिस पे है ना उसको मुझे y एक्सिस पे बनाना है, और जो y एक्सिस पे है उसको मुझे x एक्सिस पे बनाना है। मतलब इफ आई सी द ग्राफ ओवर हियर, यहां पे देखिए ग्राफ, जो x एक्सिस पे उसको कहां शिफ्ट करना है y पे, जो y एक्सिस पे उसको कहां शिफ्ट करना है x पे। तो y पे क्या है बेटा आपके पास -1 से लेके 1 तक, जिसको मुझे कहां शिफ्ट करने पड़ेगा, x एक्सिस पे, दैट इज -1 से लेके 1 तक। ऑफ कोर्स दिस इज x एक्सिस व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड। अच्छा नेक्स्ट, x एक्सिस पे क्या है, 0 π/2 π -π/2 -π एंड सो ऑन। तो यहां पे भी हम बना सकते हैं। सो लेट्स से दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज π एंड दिस इज 3 π/2, दिस इज -π/2, this will be -π and this will be let's say -3 π/2। ओके, अब यहां ध्यान से देखिए यहां पे जब हम 0 से π/2 की तरफ जा रहे हैं तो द वैल्यू इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ x क्या sin x क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, वैल्यू ऑफ y पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब जब हम यहां पे भी 0 से लेकर π/2 तक देखेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब यहां पे जो कर्व आएगा बेटा वो इस तरीके से आएगा। फिर से देखिए 0 से लेकर π/2 तक पॉजिटिव है ना, तो यहां पे भी 0 से लेकर π/2 तक इस तरफ बनेगा, दैट इज पॉजिटिव की तरफ। अब देखिए 0 से लेकर के -π तक नेगेटिव है, 0 से लेकर -π तक नेगेटिव है, तो यहां पे भी मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा और इस तरीके से कर रहा है मेरे पास, यस और नो। अब इसके बाद तो ये साइकिल अपने आप चलते चले जाएगा, यस और नो, अपने आप चलते चला जाएगा। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि मैं यहाँ पे डोमेन और रेंज निकालूं, इफ आई फाइंड डोमेन एंड रेंज ओवर हियर, तो मुझे एक चीज पता है, आई नो वन थिंग, कि जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। यहाँ पे इनफैक्ट डोमेन क्या है बेटा, डोमेन का मतलब क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच x y एग्जिस्ट, दोस वैल्यूज ऑफ x, तो x -1 से लेकर के 1 के लिए i की वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है, यस और नो, -1 से लेकर के 1 तक के लिए i की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। मतलब बेसिकली यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 वो वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए y एग्जिस्ट करता है, तो -1 से लेकर के y तक के हर एक के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए दूसरी चीज जो बात आती है हमारे पास, यहाँ पे रेंज आता है। रेंज होना क्या चाहिए, इफ वी सी टेक्निकली जो रेंज होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ y के हर वैल्यूज, सो व्हाट वी सी कि पूरा का पूरा रियल नंबर कंसीडर हो रहा है, पूरा का पूरा रियल नंबर आ रहा है, राइट। बट एक मुझे बात बताइए, जो यहाँ पे वैल्यू है, सिंस जो पीरियड होता है sin x का 2π होता है, मतलब हर एक 2π के बाद वो रिपीट करता है अपना फोटो, हर एक 2π के बाद इट रिपीट्स इट्स फोटो, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स सेम। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इसका यहाँ पे जो वैल्यू होगा बेटा वही तो यहाँ पे भी रेंज आके वैल्यू होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि यदि मैं सिर्फ यहाँ से, ध्यान से सुनना, ठीक है, हर एक 2π के बाद रिपीटेशन है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ -π/2 से लेकर के +π/2 तक लेते हैं, क्योंकि इस इंटरवल में यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो हर एक वैल्यू को ऑलरेडी अटेन कर लेता है। यदि मैं इसको सिंस इनकी मिनिमम वैल्यूज होंगी, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेकर के
इसलिए ये जो पर्टिकुलर शेप है या ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल, मतलब जो भी आपका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा वो किसके बीच में एक्सिस्ट करना चाहिए? -π/2 से लेकर के π/2 तक के लिए। किसके लिए? sin इनवर्स x के लिए। ठीक है, एंड सिंस इट अटेन्स ऑल अदर वैल्यूज, सारे के सारे वैल्यूज को अटेन करता है, इसलिए जो रेंज होगा दैट विल बी -π/2 से लेकर के π/2। ठीक है, तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो बेसिकली रेंज है, क्योंकि डोमेन तो हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं, बट रेंज में हमेशा हमें देखना है कि किन वैल्यूज के लिए वो सारे के सारे वैल्यूज को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव, दिस इज कॉल्ड sin x and sin inverse x। ये किसका ग्राफ है बेटा? for y is equals to sin inverse x का। the same we can do for cos and cos inverse x, cos x और cos inverse x के लिए भी देख सकते हैं। चलिए, what graph we have for cos x, we know कि cos x के लिए this is 0, this is π/2, this is pi, and this is let's say 3π/2, and let's say this is 2π. This is -π/2, -π, -3π/2 and -2π. Okay, तो जो मुझे कर्व मिलेगा sin x के लिए, अगेन व्हाट वी नो, इसका भी वैल्यू +1 से लेकर के -1 तक क्या होता है? -1 से +1 तक होता है। ये सब, और इसका जो ग्राफ होता है x = 0, cos x की वैल्यू 0 होती है और π/2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब यहां पे तो इस तरीके से कर्व आएगा, एंड आफ्टर दैट इट विल मूव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो यहाँ पे भी देख लो ध्यान से कि हर किसके बाद ये रिपीट कर रहा है अपना फोकस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिपीटेशन होता है कितने के बाद होता है वो होता है उसका पीरियड, दैट इज कॉल्ड इट्स पीरियड। सो दिस इज द कर्व फॉर sin x, y इक्वल्स टू sin x। यदि मैं यहाँ पे भी इसका रेंज और डोमेन डिफाइन करूं, सो व्हाट डोमेन y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ है, सो यदि मैं यहाँ पे इसका डोमेन डिफाइन करूंगा तो डोमेन क्या होगा बेटा? अगेन पूरा का पूरा r फॉर एवरी नंबर फ्रॉम -∞ to infinity जो y इक्वल्स टू cos x है वो एग्जिस्ट करता है, और इसका रेंज भी क्या होगा बेटा? सेम एज sin x, दैट इज -1 से लेकर के 1 तक, क्योंकि -1 से लेकर के 1 तक ये हर एक वैल्यू को अटेन कर रहा है, इट इज अटेनिंग ईच एंड एवरी वैल्यूज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स cos इनवर्स x, व्हाट वी सी, cos इनवर्स x में मुझे x एक्सिस को y पे शिफ्ट करना है, जो x एक्सिस है उसे मुझे y पे शिफ्ट करना है, और जो y एक्सिस है मुझे उसे x पे शिफ्ट करना है। यस और नो, मतलब x y एक्सिस पे क्या था? -1 से लेकर 1, तो वो मैंने कहां शिफ्ट कर दिया बेटा? I shifted it on x axis, मैंने x axis पे शिफ्ट कर दिया, और जो y axis पे था वो मैंने x axis पे शिफ्ट कर दिया, जो x axis पे है वो मुझे किस पे शिफ्ट करना है? y axis पे, मतलब this is 0, this will be π/2, this will be pi, this will be 3π/2, again this will be -π/2, this will be -pi, and let's say this is -3π/2। ओके, सो व्हाट वी हैव ओवर हियर कि देखिए ध्यान से देखना, 0 से π/2 तक के लिए पॉजिटिव है, 0 से लेके π/2 तक के लिए पॉजिटिव है, 0 से लेकर के π/2 तक के पॉजिटिव है। यस और नो, 0 से लेके π/2 तक पॉजिटिव है, मतलब यहां पे जो ग्राफ मिलेगा 0 से लेके π/2 तक पॉजिटिव है। यस और नो, 0 से लेके -π/2 तक भी पॉजिटिव है, मतलब इस तरीके से होगा फाइनली। कुछ इस तरीके से। Yes or no? So this is the graph for y equals to cos inverse of x। यहाँ पे यदि मैं अगेन डोमेन लिखूं तो व्हाट डोमेन आई गेट, दैट इज -1 से लेके 1 तक, लेकिन यहाँ पे जो मुझे रेंज मिलेगा, व्हाट रेंज आई विल बी गेटिंग ओवर हियर, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मुझे रेंज मिलेगा वो कहां से कहां तक मिलेगा बेटा? 0 से लेकर के π/2 तक। ठीक है, तो जो इसका रेंज होगा या जो हम इसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे वो मुझे कहां से कहां तक मिलेगा? दैट इज फ्रॉम 0 से लेकर के π तक। कहां से कहां मिलेगा? 0 से लेकर π तक फॉर cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग होता है tan इनवर्स x, tan and tan x, इसका ग्राफ हमें पता होता है। tan x का ग्राफ कैसा होता है बेटा? इफ यू सी y इक्वल्स टू tan x का ग्राफ मैं बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू tan x, सो व्हाट वी सी ये 0 है, दिस इज π/2, यहां पे आपको मिलेगा pi, एंड हियर वी गेट 3π/2, this is again -π/2, यहां पे कहीं मिलेगा -pi, and this point is -3π/2। ठीक है, so what we see, मुझे क्या पता चलता है that for every π/2 tan x की वैल्यू 10π/2 कितना होता है बेटा? इंफिनिटी, और 10 -π/2 कितना होता है? -infinity। मतलब यहां पे जो मुझे कर्व मिलेगा ना tan x का, कुछ इस तरीके से होगा, एंड सेम चीज ये इसका पीरियड होता है, इसका पीरियड पाई होता है, तो हर पाई के बाद रिपीट होगा। So this is basically the graph of y equals to tan x। इसका ग्राफ है बेटा y equals to tan x, and same when you draw this thing for y equals to tan inverse x, यदि मैं यही चीज y equals to tan inverse x के लिए बनाता हूं, तो जो x पे है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? y पे, और जो y पे है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा? x पे। यस और नो, अब देखिए 0 से लेकर के π/2 तक के लिए पॉजिटिव है, 0 से लेकर के दिस इज 0, दिस इज π/2, यहां पे कहीं pi होगा, दिस विल बी
pi by 2, this is minus pi and this is minus 3 pi by 2, right? तो what we get here कि 0 से लेके pi तक pi by 2 तक पॉजिटिव है ना, तो 0 से लेके यदि pi by 2 तक पॉजिटिव हो तो कुछ इस तरीके का कर्व मिलेगा, yes or no? Then from 3 pi by 2 से लेके pi by 2 तक अगेन इसी कर्व को मुझे निकाल करना है. So this is the graph. ये किसका ग्राफ हो गया बेटा? y is equals to tan inverse x का. And if we deal about domain, तो इसका डोमेन क्या कहलाएगा बेटा? डोमेन होता है हर एक वैल्यू जहाँ पे x की वैल्यू x, हर एक values of x for which the values of y exist, जहाँ पे y का वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है. But at this point, इन पॉइंट्स पर y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही है. इन पॉइंट्स पर y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही है. बाकी सब पे होती है. मतलब it is defined for all the r's. It is defined for all the r's. But not at 2n plus 1 pi by 2. Odd number of pi by 2 में यदि आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी odd number को तो ये डिफाइन नहीं होता. तो odd multiples of pi by 2, जैसे n की वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस pi by 2 पे डिफाइन नहीं है. n की वैल्यू यदि आप 1 लेते हो तो 3 pi by 2 पे भी डिफाइन नहीं है. n की वैल्यू 2 लेते हो तो 2 pi by 2 पे 5 pi by 2 पे भी डिफाइन नहीं होगा. n की वैल्यू यदि आप -1 लेते हो तो -pi by 2 पे भी डिफाइन नहीं है. सो सारे के सारे रियल नंबर्स पे डिफाइन है, बट इट इज नॉट डिफाइंड एट दिस पॉइंट्स, राइट? And if we see डोमेन के बाद रेंज, तो रेंज इसका क्या आता है बेटा? r, क्योंकि फॉर -infinity से लेके इंफिनिटी तक के हर एक वैल्यूज के लिए डिफाइंड है. सो व्हाट वी सी कि tan x का जो डोमेन है, tan x का जो डोमेन है वो क्या है हमारे पास r पूरा का पूरा रियल नंबर्स, बट वी डोंट हैव सच वैल्यू इन वैल्यूज पे, दैट इज 2n plus 1 pi by 2 में डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हम वहां से इसे इरेडिकेट कर देते हैं. ठीक है. अच्छा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x के लिए क्या होगा बेटा? y इक्वल्स टू tan इनवर्स x के लिए देखिए जो डोमेन है ये पूरे फंक्शंस के लिए डिफाइंड है, राइट? माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे डिफाइंड नहीं है तो वो तो होता भी नहीं, हम बता भी नहीं सकते हैं. तो इसका जो डोमेन हो गया, डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, और माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है. यस और नो? वी कैन से इट r. नाउ व्हाट वी सी कि इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है, रेंज मतलब सारे वैल्यूज को अटेन करना चाहिए. तो देखिए ये जो पीरियड है यहां से लेके यहां तक इसका पीरियड है, राइट? यस और नो? इसका पीरियड यहां से लेके यहां तक है. मतलब इसका मतलब क्या होगा बेटा कि यहां पे जो अगेन यदि मैं इसकी रेंज की बात करूं तो -pi by 2 से लेकर के +pi by 2 तक के ये सारे वैल्यूज को अटेन कर ले रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रेंज कहलाएगा. इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. इसी को आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. समझ में आ गया? So y is equals to sin x, this is for y is equals to sin inverse x. Y is equals to cos x, this is for y is equals to cos inverse x. This is for y is equals to tan x and that is for y is equals to tan inverse x. तो इसका हर एक का ग्राफ पता होना चाहिए. You should know about range क्या है, उसका डोमेन क्या है, ठीक है? ये सब चीज पता होना चाहिए. उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है. These are the things that you should know. Okay. Now one homework which I am giving to you over here, that y is equals to sin x, y is equals to cos x and y is equals to tan x के बाद जो तीन ग्राफ्स बच गए, that is y is equals to cos x, sec x and cot x. ये सब का ग्राफ बनाना है आपको, and you have to tell that what are the range and what are the codomain, what are the domains for those three functions, inverse trigonometric function. Okay. So now let us continue the next part, that is what are the properties for inverse trigonometric functions. देखिए एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टीज. ठीक है? वो प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको प्रूव करना है. यहाँ पे कोई दिग्गज क्वेश्चन नहीं आता, ये काफी इजी चैप्टर्स होते हैं एंड दैट इसलिए इजी होता है क्योंकि पूरा का पूरा चीज डिपेंड होता है इसके प्रॉपर्टीज पे. और यदि इसका प्रॉपर्टी समझ में आ गया देन वी कैन डू एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस. Okay, so let us start with the properties of ITF and the first property is self-adjusting property. जो पहला प्रॉपर्टी होता है बेटा दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी. ठीक है? सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है कि या तो आप sin ऑफ sin इनवर्स x लिखो या तो आप sin इनवर्स ऑफ sin x लिखो, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? x. बेसिकली होगा क्या 5 इनवर्स into 5 यदि आप लिखते हो तो कैंसिल हो जाएगा. मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में पढ़े a इनवर्स into a कितना होता है? i. तो यहां पे भी वही चीज को फॉलो करता है कि if you have sin of sin inverse and sin inverse of sin x then that will be equal to x. Similarly, if we see that we have cos of cos inverse x or cos inverse of cos x then it means x. और similarly यदि आपके पास tan है tan inverse of x लिखो
या फिर tan इनवर्स ऑफ tan x लिखो, इसका भी वैल्यू कितना होगा बेटा x होगा, its value will be x, वो x की वैल्यू, ठीक है। इस सब लोग देख लीजिए। If we have the proof, what I have to prove that sin of sin inverse x is equals to x, that's मुझे proof करना। So what can we see, एक चीज देखिए ध्यान से कि let y is equals to sin inverse x मान लिया हमने, y को क्या मान लिया मैंने sin inverse of x। Now can we say यदि y is equals to sin inverse x है तो जब sin inverse इधर से इधर जाएगा, बेसिकली y एक एंगल याद रखना यहाँ पे कि when we define किसी भी फंक्शन को मैं इक्वल टू समथिंग बोल रहा हूँ, if I have any inverse trigonometric function is equals to something हो तो something क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा एंगल को, क्या रिप्रेजेंट करता है एंगल को, बिकॉज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं क्या है, इट इज an expression in which the angle is represented in its value, in the form of its value, yes or no। तो ये जो y है ये डेफिनेटली एक एंगल है। So can we say कि sin y की वैल्यू फिर x होगी, can we say sin y की वैल्यू x होगी, और हमने y लिया कितना था, y तो sin inverse x है ना, so हम बोल सकते हैं कि sin of sin inverse x is equals to x। So this is the self adjusting property, जैसे हमने y is equal sin of sin inverse x is equals to sin inverse of sin x is equals to x किया था, in the same way we can proceed for the other things, that is cos of cos inverse x, tan of tan inverse x and all, ठीक है। तो जो पहला प्रॉपर्टी है that is self adjusting property। So after self adjusting property जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है that is reciprocal property। in the reciprocal property क्या होता है बेटा, देखिए what we know कि sin x का reciprocal क्या होता है cosec, cosec का sin, tan का reciprocal cot, cot का tan, sec का reciprocal cos and cos का reciprocal sec, sin का cosec, cosec का sin, tan का cot, cot का tan, cos का sec और sec का cos। okay, now यहाँ पे यदि if we see the reciprocal property, so what we have reciprocal property में क्या होता है ध्यान से देखिएगा कि यदि आपके पास sin inverse of x है, यदि आपके पास sin inverse x है and if you want to express it in the terms of cosec inverse, यदि आप इसको cosec inverse के terms में एक्सप्रेस करोगे तो x की क्या हो जाएगा बेटा 1/x। कहने का मतलब याद करने का तरीका कैसा होगा कि यदि आप sin का रेसिप्रोकल लिख रहे हो तो आपको x का भी रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा और x का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/x। in the same way I can say that cos inverse of x कितना होगा, बोलिए cos inverse of x कितना होगा, that will be sec inverse of 1/x, क्योंकि यदि आप रेसिप्रोकल ले रहे हो तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल लीजिए। यदि आप tan inverse of x ले रहे हो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, that is cot inverse of 1/x। similarly if you are saying that it is the question is cot inverse of x और इसको यदि आप tan में रेसिप्रोकेट करना चाहोगे, tan में कन्वर्ट करना चाहोगे तो tan inverse क्या लिखोगे 1/x। similarly for cosec and similarly for sec। okay, so यदि रेसिप्रोकल आप किसी भी एक का कर रहे हो, if you are reciprocating any of the one, तो आपको उसमें दूसरा का भी रेसिप्रोकेट करना है, ठीक है, दूसरे का भी रेसिप्रोकेट करना है। मतलब यदि sin inverse x है तो यदि आप sin inverse को रेसिप्रोकेट करोगे, sin का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec और x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x, तो दोनों ठीक है। now here again we can see the proof, what we have to prove that sin inverse of x is equals to cosec inverse of 1/x, ठीक है। let sin inverse x is equals to 1, हमेशा याद रखना कि इसमें हमेशा ऐसा ही आपको लेट करना होगा और जब कभी भी आप लेट करोगे the moment you take anything that you suppose, यदि आप कभी भी कोई भी सपोजिशन लेते हैं, if you suppose anything, so if sin inverse of x is equals to y है, अगले मोमेंट पे फटाक से ना लिख दो x is equals to sin y, उसी मोमेंट पे आपको लिखना x is equals to sin y, ठीक है। जब कभी भी आप कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेट करोगे उसी स्टेप में लिख दो कि sin को उधर ट्रांसफर कर देते, ठीक है। now what we say x is equals to sin y, but मुझे प्रूफ क्यों करना है, that is in the terms of cosec, cosec के टर्म में प्रूफ करना है, मतलब I can write x is equals to 1/cosec of y, yes or no, और cosec y को क्या लिख सकते हो बेटा, that is 1/x, है ना, और cosec y को हम लिख सकते हैं 1/x, can we write cosec y as 1/x, और यदि मुझे सिर्फ y का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, that is cosec inverse of 1/x। y एक्चुअली क्या था, what was y, that is sin inverse of x, हमने इसको प्रूफ क्या कर दिया, that is cosec inverse of 1/x, hence sin inverse of x is equals to cosec inverse of 1/x। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को देखो, आपको प्रूफ खुद ही बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को सिर्फ देखोगे ना आपको प्रूफ ऑटोमेटिकली खुद से आपको प्रूफ मिल जाएगा। ओके, सो दिस वी हैव a sin inverse x is equals to cosec inverse of 1/x, this you can prove yourself। ओके, your third property होता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी
वेजिटेरियंस, यस और नो? वी से दैट साइन और tan जो होते हैं, जो साइन और tan होते हैं वो वेजिटेरियंस होते हैं और जो cos होता है वो नॉन वेजिटेरियन होता है। आपने ऐसे कैसे कैसे तो देखिए हमने क्या आइडिया वहां पे भी रखा था कि यदि आप एक प्योर वेजिटेरियन है, इफ यू आर प्योर वेजिटेरियन, आपके घर में सब प्योर वेजिटेरियन है और आपके घर में कोई आता है चिकन लेके, ठीक है, आपके घर में कोई आया है चिकन लेके, तो आप क्या करोगे? चलो बाय चलो, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द होम, सॉरी गेट आउट ऑफ द होम। कोई नहीं खाता है यहाँ पे, हाँ या ना, यस और नो? वो कब होगा बेटा? जब आप एक प्योर वेजिटेरियन है, आपके घर में कोई चिकन लेके आया, भाई साहब आप जाइए, धन्यवाद, यस और नो? बट किस इफ यू आर अ प्योर नॉन वेजिटेरियन, आपको नॉन वेजिटेरियन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, यू टॉक इन चिकन, यू सिंग इन चिकन, यू वॉक इन चिकन, बस सब जगह चिकन चिकन। तब यदि आपके घर में कोई चिकन लेके आता है तो टूट पड़ोगे, आओ बैठो मिलके खाते हैं, सिट डाउन प्लीज कम, वेलकम, यस और नो? तो ये कब होता है बेटा? जब आप एक नॉन वेजिटेरियन है, आपके घर में कोई चिकन लेके आ रहा है तो आप उसको सब मिलके बैठ के खा जाओगे, यस और नो? लेकिन यदि आप एक वेजिटेरियन हो, कोई आपके घर में चिकन लेके आ रहा है, गेट आउट ऑफ द होम, यस और नो? इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि sin, cos और tan जब इनके अंदर इनके घर में कोई चिकन लेके आता है, चिकन का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? माइनस। चिकन का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे माइनस कर रहा है। तो sin और tan चूंकि वेजिटेरियन होते हैं, sin और tan क्या होते हैं बेटा? वेजिटेरियन होते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा? इस माइनस को बोलते हैं भाई चिकन लेके बाहर जाओ चलो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये माइनस ऑफ sin x, दिस विल बी माइनस ऑफ tan x। लेकिन cos क्या करेगा? cos इज नॉन वेजिटेरियन, चिकन उसे पसंद है, खा लेगा, और यदि वो खा लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? दैट इज cos x। ये कितना हो जाएगा? cos x। तो दिस इज बेसिकली sin ऑफ माइनस x कितना होता है? माइनस sin x, cos ऑफ माइनस x cos x, एंड tan ऑफ माइनस x कितना होता है? माइनस tan x। एंड सेम लॉ फॉर अदर थ्री, उन तीनों के लिए भी सेम होगा। मतलब यदि cos नॉन वेजिटेरियन है तो sec इनवर्स sec भी कैसा होगा बेटा? दैट विल बी आल्सो नॉन वेजिटेरियन। बाकी जो cot होते हैं या फिर cosec होते हैं, these are वेजिटेरियन। और बोलेंगे भाई साहब आप लोग बाहर जाइए, sec क्या करेगा? उसको खा लेगा, बट बाकी जो cosec या cot है वो माइनस को नहीं खाएंगे, बोलेंगे बाहर जाइए, ठीक है? तो यहाँ पे भी इन ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आल्सो वी हैव द सेम क्राइटेरिया। उसी तरीके का क्राइटेरिया है कि यदि आपके पास sin इनवर्स ऑफ माइनस x है, यदि आपके पास sin इनवर्स ऑफ माइनस x है, या फिर cos इनवर्स ऑफ माइनस x है, या फिर tan इनवर्स ऑफ माइनस x है, इन दैट केस क्या होगा बेटा? sin क्या करेगा? sin और tan तो माइनस को बराबर दे देंगे, नॉन वेज हो तुम बाहर जाओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ sin इनवर्स x, और ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। लेकिन cos ऑफ माइनस इनवर्स x यहाँ पे थोड़ा सा अलग खेल खेलता है, दैट इज कितना हो जाएगा बेटा? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। मतलब ये भी माइनस तो बाहर भेजेगा, लेकिन उससे क्या करेगा? वो अपने घर वालों को, जिनको चिकन बहुत पसंद है, उनको बोलेगा भाई बाहर जाकर खाओ, घर में नहीं खाना है उनको, ठीक है? तो ये इन लोगों को बाहर भेज देता है ऐसे कुछ बच्चों को, ठीक है? तो cos इनवर्स ऑफ माइनस x कितना हो जाएगा? दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स x, बाकी सब में माइनस से बाहर आ जाएगा। इस चीज का आपको याद रखना, ठीक है? नाउ इफ वी गो ऑन द प्रूफ पार्ट ओवर हियर, यहाँ पे हमें दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा, sin को भी प्रूफ करना पड़ेगा, cos को भी प्रूफ करना पड़ेगा। सो हमेशा हमारा जो काम है वो किससे स्टार्ट होगा? यहाँ पे लेट से स्टार्ट होगा। सो लेट y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ माइनस x। मैंने क्या लेट किया कि y की वैल्यू कितनी है बेटा? sin इनवर्स ऑफ माइनस x है। एंड इफ y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ माइनस x, तो जैसे ही आप सपोज करते हो, कुछ लेट करते हो, तो अभी मैंने बताया था कि उसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि sin को इधर ट्रांसफर कर दो। सो व्हाट आई गेट इज sin ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस x। क्या मिलेगा मुझे? sin ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस x मिलेगा। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ sin y इज इक्वल्स टू x। कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, sin ऑफ माइनस y। अरे भाई अभी हमने सीखा ना कि sin कैसा होता है? sin कैसा होता है? sin होता है वेजिटेरियन। तो यदि कोई इसके घर में माइनस लेके जा रहा है, तो माइनस को बाहर फेंकेगा या नहीं फेंकेगा? बेसिकली इसको उल्टा आपने लगाया, इसको पहले लिखा फिर ये वाला लिखा, ठीक है? ऐसा लिख सकते हो इसको। अच्छा, यदि आप इसको ऐसा लिख सकते हो तो कैन आई राइट माइनस y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x? कैन आई राइट माइनस y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x? एंड कैन वी राइट y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ x विद दिस माइनस साइन? एंड आई सेंड दिस माइनस ओवर देयर, और y की वैल्यू थी कितनी? दैट इज sin इनवर्स ऑफ माइनस x। सो व्हाट आई गेट दैट sin इनवर्स ऑफ माइनस x, sin इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin इनवर्स x, है ना? अच्छा, इसी तरीके से जैसे हमने y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x के लिए प्रूफ किया, कैन वी प्रूव फॉर द प्रूफ? इसी तरीके से हम किसको प्रूफ कर सकते हैं बेटा? वी कैन प्रूव द सेम फॉर y इज
cos inverse of x. ठीक है, what we have to show that cos inverse of minus x is equals to pi minus cos inverse of x. So again LHS से स्टार्ट करते हैं, y is equals to cos inverse of minus x. yes or no? y is equals to cos inverse minus x, और जैसे ही आप कुछ लेट करते हो, सपोज करते हो, तो अगला काम क्या होता है, cos inverse को इधर ले लो. So cos y is equals to minus x हो जाएगा मेरे पास, एंड इसके बाद हम माइनस को इधर लेके जाते हैं, तो माइनस ऑफ cos y is equals to x होगा. यहाँ पे हमने बहुत चालाकी से लिख दिया था कि माइनस ऑफ sin y is equals to sin of minus y, बट ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ये माइनस तो अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि cos minus y cos y होता है, इट इज नॉट माइनस cos y, तो आप लिख नहीं सकते हो. और यदि आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, बट हमें ऑल सिल्वर टी से ये पता है कि cos pi minus थीटा होता है माइनस cos थीटा. Why? Because 180 है, तो नेम चेंज तो होगा नहीं, एंड इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में किंग होता है sin एंड cos है, यहाँ पे cos है तो sin चेंज हो जाएगा, दैट विल बी माइनस. इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, cos of pi minus y लिख सकते हो, cos of pi minus y, and cos of pi minus y is equals to x, जहां से मैं क्या लिखूंगा, pi minus y is equals to cos inverse of x, है ना. और क्या लिख सकते हैं, that is pi minus cos inverse x is equals to y. तो थोड़ा सा उल्टा करके लिखना, LHS को पहले RHS को बाद में. y की वैल्यू है कितनी, y की वैल्यू है cos inverse of minus x, so cos inverse of minus x is equals to pi minus cos inverse of x, hence the proof gets complete. समझ में आ गई बात. मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, लेके माइनस cos y को cos of pi minus y, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. Rest everything is same as we had did for y is equals to sin inverse of minus x. ठीक है, so these are the three properties. First पहला है आपका self adjusting property कि यदि sin inverse of minus x लिखो, sin of sin inverse of x लिखो या sin inverse of sin x लिखो, that is x. सेकंड था reciprocal property, यदि sin inverse x का reciprocal आपको लिखना है, sin का reciprocal यदि cos है तो x का reciprocal 1/x है, उसका आपको लिखना है. एंड थर्ड, यदि आपके पास sin inverse of minus x है, that is minus of sin inverse x, cos inverse of minus x है तो pi minus cos inverse x, and tan inverse of minus x है तो minus of tan inverse of x. ठीक है, so these are the properties. अगला प्रॉपर्टी, fourth property, that is sin inverse of x plus cos inverse of x की वैल्यू pi by 2 होती है. Similarly tan inverse of x बोलो या cot inverse of x बोलो, इसकी भी वैल्यू pi by 2, and sec inverse x बोलो या cosec inverse x बोलो, इसकी भी वैल्यू pi by 2. ठीक है, तो sin inverse x plus cos inverse x की वैल्यू कितनी होती है, pi by 2. tan inverse x plus cot inverse x की वैल्यू कितनी होती है, pi by 2, and sec inverse x plus cosec inverse x की वैल्यू कितनी होती है, pi by 2. When we go to the proof part, यदि हम इसका proof part देखें, so how can we prove it? See, again मैंने क्या लेट कर लिया कि sin inverse x की वैल्यू कितनी है, y है. यदि आपने कुछ भी चीज लेट किया तो अगला स्टेप आपको अभी तक तो सीख चुके होंगे कि अगला स्टेप आपके पास क्या होगा बेटा, that is sin को आप इधर से इधर लेके जाओगे, so what I get, x is equals to sin y, right? बट मुझे sin नहीं चाहिए, मुझे इसी चीज में क्वेश्चन में सिर्फ sin नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए बेटा, cos. What I need in the question is cos. यदि मुझे क्वेश्चन में cos का जरूरत है, so can I write sin y is equals to cos of pi by 2 minus 1. कॉम्प्लीमेंटली 10th क्लास से पढ़ते आ जाओ, cos 90 minus theta sin theta, sin 90 minus theta cos theta. Can I write it? Yes. और यदि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, then of course I can write that is cos inverse of x is equals to pi by 2 minus y, और जब minus y इधर से इधर आएगा, that means cos inverse of x plus y is equals to pi by 2, और y तो sin inverse x है. That means I can write cos inverse of x plus sin inverse of x is equals to कितना, pi by 2, and this completes the. ठीक है, and similarly we can do for the other two. Rest two के लिए कह सकते हैं, that is tan inverse को हम लिख सकते हैं cot of pi by 2 minus y, and sec को हम लिख सकते हैं cos of pi by 2 minus. Okay, चलिए. So this was the fourth property, और अभी तक का सबसे important property जो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि maximum questions आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करके करना है. इन आईटीएल मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको ये जो फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी है वो है, एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कन्वर्जन प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी, okay, so we have already seen four properties, चार properties हमने देख चुके हैं, and the most important property of all, that is conversion property. ठीक है, because many of the questions will be solved by conversion property. बहुत सारे questions में, in fact the maximum question will be solved by conversion property. ठीक है, maximum questions में इसका यूज होगा. and conversion जैसे आपने क्लास 10 में
cos के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, cos को sin के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, sin को tan, cosec, sec, cot इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करना। तो वही चीज यहाँ पे भी हमारे पास कन्वर्जन में हमें वही करना है, we have to convert sin inverse into cos inverse, tan inverse, cot inverse, sec inverse, cosec inverse and same the others too, ठीक है। So let's say we will start with sin inverse x, हम sin inverse x से start करते हैं, sin inverse x, और इसमें सबसे इजी जो होगा, the easiest thing, easiest conversion जो होगा sin inverse x का, that will be cosec inverse x। क्यों cosec inverse में? क्यों भाई? क्योंकि we know the reciprocal property, और reciprocal property के हिसाब से I can write it as cosec inverse of 1 by x। sin inverse को हम क्या लिख सकते हैं? cosec inverse of 1 by x लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली अब देखिए sin को हमने cosec में कन्वर्ट कर दिया, बट बाकी सब में भी करना है, cos, sec, tan and cot में, तो let y is equals to sin inverse x। मैंने क्या लेट कर लिया बेटा? y को sin inverse x लेट कर लिया। एंड द मोमेंट यू टेक let, जब कभी भी आप let करते हो, you suppose anything, तो मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए बेटा? जैसे आप sin को इधर ले आओगे तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? दैट इज sin y। x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? sin y। अच्छा मुझे एक बात बताइए, cos y की वैल्यू होती कितनी है? cos y की वैल्यू होती है √1 - sin square y। sin y क्या है? sin y क्या है बेटा? द वैल्यू ऑफ sin y इज x, मतलब कैन आई राइट इट लाइक 1 - x स्क्वायर cos y को, और y को आप क्या लिख सकते हो? दैट इज cos इनवर्स ऑफ √1 - x स्क्वायर। आपने लेट क्या किया था? y इक्वल्स टू sin इनवर्स x, आप क्या किया? y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1 - x स्क्वायर, मतलब sin इनवर्स x की वैल्यू, y आपने sin इनवर्स x लेट किया था ना, तो sin इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? cos इनवर्स ऑफ 1 - x स्क्वायर। यस और नो? मतलब sin इनवर्स x को मैं cos के टर्म्स में क्या लिख सकता हूं? दैट इज cos इनवर्स ऑफ 1 - x स्क्वायर। और यदि मुझे cos के टर्म्स में पता है, then of course I know it in the terms of sec inverse, और sec inverse कितना होगा बेटा? इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√1 - x स्क्वायर, है ना? क्योंकि यदि आपको cos पता है, cos इनवर्स का रेसिप्रोकल sec, और √1 - x स्क्वायर का रेसिप्रोकल कितना होगा? दैट इज 1/√1 - x स्क्वायर। यस और नो? अच्छा, cos में कन्वर्ट करिए, tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। tan y का मतलब क्या होता है बेटा? sin y by cos y। tan y का मतलब क्या होता है? sin y by cos y, है ना? y है कितना? y sin y की वैल्यू x है, sin y की वैल्यू x है, कैन आई राइट x? cos y की वैल्यू कितनी है? cos y की वैल्यू कितनी है? √1 - x स्क्वायर। सो tan y यदि x/√1 - x स्क्वायर है, देन कैन आई से कि y की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x/√1 - x स्क्वायर। बेसिकली y था क्या? y है क्या? sin इनवर्स x, मतलब व्हाट कैन आई राइट एज sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x/√1 - x स्क्वायर, राइट। मतलब इसको sin इनवर्स x को और आप क्या लिख सकते हो बेटा? tan इनवर्स ऑफ x/1 √1 - x स्क्वायर। और यदि tan में पता है, देन हम cot में भी लिख सकते हैं, दैट इज cot इनवर्स ऑफ √1 - x स्क्वायर बाय x। समझ में आ गया कितना इजी कन्वर्जन है? जस्ट यू नीड टू नो, आपको जो बेसिक 10 क्लास में देखना है आइडेंटिटी से वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? दैट्स इट। तो हमने sin इनवर्स को cos, sec, tan और cot सब में कन्वर्ट कर दिया। The same criteria we can use in converting cos inverse x into the rest ratios, ठीक है? तो यदि मेरे पास cos inverse x को मुझे एक्सप्रेस करना है बाकी ITS में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, so again I take cos inverse x is equals to 1, ठीक है? cos inverse x को मैंने कितना ले लिया बेटा? y ले लिया। So if I take cos inverse x is equals to y, तो अगला स्टेप, सबसे पहली बात तो ये कि if we are writing cos inverse x, that means you know that this is equal to what? sec inverse of 1 by x। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से हमें cos वाला पता चलता है। Now cos inverse x से यदि आपने y लिया है तो what can I write? That x is equals to cos y, है ना? अब cos को sec में कन्वर्ट करते हैं, किसमें करना है? sin, cosec, tan and cot में। So what I can write, sin y कितना होगा बेटा? sin y will be equal to √1 - cos square y, और cos y है कितना? sin y y, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sin inverse and 1 - cos square y, that is 1 - x square, right? मतलब y की वैल्यू कितनी होगी बोलिए? That is sin inverse of √1 - x square। Okay, now this is for y, and now next यदि आप इस cos inverse को, और क्या y क्या था आपका? बेसिकली y का आपका cos inverse x है, so cos inverse x को मैंने कितना लिख दिया? sin inverse of 1 - x square। और यदि आपको sin में पता है, then you know in the terms of cosec inverse that is 1/√1 - x square, है ना? अच्छा, और tan y का वैल्यू कितना होता है बेटा? tan y का वैल्यू होता है sin y by cos y। यस और नो? sin y कितना है? sin y है, sin y की वैल्यू कितनी है? √1 - cos square y, that means that can be written as 1 - x square। और cos y कितना है? x, तो tan y can be written as y is equals to tan inverse of √1 - x square by x।
लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। ओके, और y है कितना, दैट इज cos इनवर्स x, मतलब इसको मैं tan के टर्म्स में लिखना चाहूं तो कितना होगा, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और cot के टर्म्स में लिखना चाहूं तो कितना होगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कब किस में कन्वर्जन है। tan को यदि sin को आपको cos में कन्वर्ट करना है, sin इनवर्स x cos इनवर्स ऑफ 1 बाय x, cos में कितना होगा, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो sec में कितना होगा, sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan में कितना होगा, दैट इज tan में कितना होगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cot में कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। सिमिलरली यदि आपके पास cos इनवर्स x है, देन यू कैन राइट इट लाइक sec इनवर्स ऑफ 1 बाय y, sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, cosec इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, एंड tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बाय x, एंड cot इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपको मुझे बात याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है। ठीक है, इनफैक्ट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद याद रहेगा। ठीक है, तो ये दो चीज करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड था, और ये डिफिकल्ट मेथड है। ठीक है, जो अगला मेथड मैं बताने जा रहा हूं, दैट विल बी क्वाइट इजीयर मेथड। ठीक है, लेट्स से मुझे 10 का कन्वर्ट करना है बाकी सब में, और क्योंकि sin को कन्वर्ट कर लिए, cos को कन्वर्ट कर लिए, तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे बेटा, tan को। इसको कन्वर्ट करेंगे tan को। सो व्हेन वी कन्वर्ट इन द टर्म्स ऑफ tan, लेट्स से मेरे पास tan इनवर्स x है, तो मैं इसको सबसे पहले तो cot इनवर्स ऑफ 1 by x लिख देता हूं, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इफ आई से दैट tan इनवर्स ऑफ x is equals to y है, यदि tan इनवर्स x is equals to y आपने सपोज किया है, एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट यू राइट दैट tan of y is equals to x, आपने क्या लिखा, tan of y is equals to x, है ना। This represents a trigonometric value, एक trigonometric value को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे tan एक ऑपरेटर है, this is the input and this is the output, मतलब x जो है ये बेसिकली trigonometric रेशियो है, क्योंकि एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। y आपका एंगल है, y is an angle, but ये जो x है, this is the numeric value, right? So x को मैं x upon 1 लिख सकता हूँ। और याद रखो 10th का जमाना, बचपन के दिन जब आपको मिलता था tan थीटा is equals to 4 by 3, तो आप क्या कहते थे बेटा, परपेंडिकुलर को 4 बोल देते थे, बेस को 3 बोल देते थे, याद है कुछ। मतलब यदि मेरे पास tan y है, tan y का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, p b p h h b एंड sin cos tan, tan का मतलब होता है p by b, tan का मतलब क्या होता है, p by b होता है। सो यदि tan y का वैल्यू p by b है, मतलब यदि आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल y है, और y के करेस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर है दैट इज x, y के करेस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर x है, और जो बेस है वो y है, बेस कितना है y, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन फाइंड दिस वैल्यू एज x स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, x स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर। अब पूछो भाई क्या पूछना है, आपको पूछना है sin y। sin y क्या होता है, sin मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, यस और नो। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए यहां से, दैट इज sin इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। y आपने लिया कितना था, tan इनवर्स x, y कितना लिया था, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स को sin में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास क्या आ गया बेटा, दैट इज sin इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, जिसको मैं cosec के टर्म्स में लिख सकता हूं अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। इससे निकाल सकते हैं, जो निकालना आपको cos इनवर्स में चाहिए निकालो cos y। cos y क्या होता है बेटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, cos y क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, y के लिए बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है x स्क्वायर प्लस 1, मतलब y को आप क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये लिख सकते हो। इसी चीज को आप यदि cos में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, बोलो cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, तो इसको sec के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। आया ना, आया नहीं आया। सो दीस आर द थिंग्स, ये आपका इजी है क्योंकि आप ट्रायंगल बनाओ इजीली करोगे, समझ में आ गया। मतलब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यदि आपके पास कभी लेट्स से द क्वेश्चन आस्क यू कि sin इनवर्स 3 by 5 को आपको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, कितना आएगा आपको नहीं पता, इसके वैल्यू निकालना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो लेट्स से दिस इज इक्वल्स टू 1, तो sin इनवर्स 3 by 5 को मैंने y लेट कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, sin y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 by 5। सो फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्री, यदि मेरे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल y है, sin का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो y के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, और y के लिए हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, y के लिए परपेंडिकुलर हो गया 3 एंड हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो दिस विल बी ऑफ कोर्स 4। तो यदि मैं इसको tan y निकालूं तो tan y का मतलब क्या होता है बेटा, 3 by 4 परपेंडिकुलर बाय बेस, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3 by 4। y था क्या, sin इनवर्स ऑफ 3 by 5, y आया क्या, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3 by 4, तो इसमें आएगा क्या, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 3 by 4। यदि मुझे इसको cos में कन्वर्ट
करना है तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा cos phi। cos phi क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स ऑफ 4/5। अब ध्यान दीजिए y था क्या, sin इनवर्स ऑफ 3/5, y आया क्या, cos इनवर्स ऑफ 4/5, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ 4/5। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको कि सिंस sin इनवर्स x है, ये किसी भी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एंगल को, याद है आपको। अच्छा, इसका मतलब कि यदि आपके पास, ध्यान से सुनना, यदि आपके पास sin, इसका मतलब क्या है कि यदि आपके पास sin थीटा sin x होता है तो आप थीटा की वैल्यू क्या बोलते हो बेटा, थीटा की वैल्यू n pi plus minus 1 to the power n of x बोलते हो। जबकि थीटा तो एक एंगल है ना, इसका मतलब यदि मैं इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin इनवर्स x लिखूं, इफ आई राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin इनवर्स x का जनरल सॉल्यूशन लिखूं तो sin इनवर्स x का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, दैट इज n pi plus minus 1 to the power n of sin इनवर्स x। मतलब चाहे यदि आप उसमें इतना ऐड भी कर दो ना तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। सिमिलरली cos इनवर्स x की वैल्यू 2n pi plus minus cos इनवर्स x की रहेगी, उसमें यदि आप 2n pi प्लस भी कर दोगे उस एंगल में तो उतना ही वैल्यू आएगा। सिमिलरली tan इनवर्स x is equals to n pi plus tan इनवर्स x। ठीक है, तो इससे क्लियर कितना होता है, n pi का। ओके, सो दीस आर द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं एज अ प्रैक्टिस। Okay, the question is find general and principal values of general और principal values निकालने हैं। ठीक है, the first question is cos inverse of 1/2। ठीक है, what we know cos inverse 1/2 कब होता है बेटा, 1/2 कब होता है, cos 1/2 कब होता है, cos 60 के। मतलब can we write it like cos inverse of cos 60, yes or no? By self adjusting property cos से cos कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसे काट के लिखना नहीं। ठीक है, सो आंसर विल बी 60 का मतलब कितना होता है, pi/3। this is the general, this is the principal value। ये आपका principal value, इसका जनरल सॉल्यूशन कितना होगा बेटा, that is 2n pi plus minus pi/3 according to this, yes or no, because cos inverse 1/2 की वैल्यू कितनी है, pi/2। so this is the general solution and this is the principal value। If you are asked about tan inverse of -1, tan inverse of -1 का मतलब वैल्यू कितना होगा बेटा, what I can write it like minus of tan inverse 1, नेगेटिव माइनस बाहर आ जाता है। tan inverse 1 का होता है बेटा 10 pi/4 पे, कब होता है बोलो, 10 pi/4 से 10 से tan कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज -pi/4 या -45, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। ये क्या है आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू है। बट इफ आई आस्क अबाउट जनरल वैल्यू, दैट इट विल बी n pi minus pi/4। This is the general value and this is the principal value. Okay, और क्वेश्चंस करते हैं। Let's say we have sin inverse of -1/√2। ठीक है, अगेन -1/√2 है sin इनवर्स के अंदर, तो माइनस हम यदि कॉमन निकाले तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, sin इनवर्स ऑफ 1/√2 मिलेगा। 1/√2 कब होता है, 45 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस sin इनवर्स ऑफ sin 45, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, -pi/4 बचेगा। Yes or no? ये this is what, this is its principal value। If we talk about general value तो कितना हो जाएगा बेटा, that is n pi plus minus 1 to the power n of -pi/4। Yes or no? और क्वेश्चन का सिलसिला यूं जारी रखते हुए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, if I have to find such values, sin of cos inverse of 3/5 की वैल्यू, तो ये जो पर्टिकुलर ये कोई एंगल है, इतना आपको पता है कि ये पर्टिकुलर एक एंगल है ना, दिस पर्टिकुलर इज एन एंगल। ओके, कितना एंगल है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि मुझे इस साइन को cos से कैंसिल आउट करना है, इस साइन को cos से कैंसिल आउट करना है, तो मैं कैसे कैंसिल, यदि मैं cos को sin में कन्वर्ट कर दूं, इफ आई कन्वर्ट दिस cos इनवर्स इनटू sin इनवर्स, तो वो sin इनवर्स से ये sin कैंसिल हो जाएगा, है ना। कैसे, देखिए मैं सिर्फ इस पार्ट को डील करता हूं पहले कि लेट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 3/5। लिख सकते हैं cos inverse of 3/5, that means cos phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3/5। तो यदि for any particular angle value in a right angle triangle, for any angle value phi, cos का मतलब क्या होता है, बेस का hypotenuse, if base is 3, hypotenuse is 5, then this will become 4। मुझे cos को किस में कन्वर्ट करना है, sin में, cos को किस में कन्वर्ट करना है, sin में, मतलब I can write sin y is equals to perpendicular by hypotenuse,
दैट मींस y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 4/5। तो ये जो आपने cos इनवर्स 3/5 लिया था, इसको आप क्या लिख रहे हो, sin इनवर्स ऑफ 4/5 लिख रहे हो। मतलब जो क्वेश्चन है बेसिकली क्या हो गया, sin इनवर्स ऑफ 4/5, sin इनवर्स से sin कैंसिल होके आंसर विल बी 4/5। तो ये मुझे कितना मिला, जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, दैट इज 4/5। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 4/5। तो और क्वेश्चंस करते हैं। The question is cos of tan inverse 3/4। साफ-साफ मतलब है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे tan inverse को किस में कन्वर्ट करना है, cos inverse में करना है। तो अगेन मैं ट्रायंगल बना लूंगा, y को मैंने क्या ले लिया बेटा, tan inverse of 3/4, जहां से tan y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 3/4। तो यदि ये y है, इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3, और बेस कितना हो गया, 4, तो हाइपोटेनस ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा, 5। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, cos y। cos y मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, दिस इज बेस, दिस इज द हाइपोटेनस, y की वैल्यू कितनी आ रही है, cos इनवर्स ऑफ 4/5। तो जो क्वेश्चन है cos ऑफ tan इनवर्स 3/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, दैट इज cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ 4/5। ये कैंसिल हो गया, इसका भी वैल्यू कितना आ गया, आंसर हमारे पास 4/5। ठीक है, तो बहुत इजी होता है आपको ये सब करना, ये सब क्वेश्चंस करना। बस इतना याद रखना कि जो भी आपको कन्वर्जन है उस चीज में आपको सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में आपको बस प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है, नथिंग एल्स देन दैट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin pi/3 minus sin inverse of 1/2 is equals to question mark। ठीक है, you have to find its value। चलिए, सो सबसे पहले तो मैं sin inverse of 1/2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, sin inverse of 1/2 को इधर साइड में लिखूं, sin inverse of 1/2, that means I can write sin inverse of sin 1/2 का होता है बेटा 30 डिग्री में। 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, pi/6। 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, pi/6 होगा। द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री विल बी pi/6। क्वेश्चन में जाते हैं, तो यहां से मेरे पास क्या होगा, sin pi/3 minus pi/6, pi/3 minus pi/6। और यदि आप एलसीएम लेते हो, इफ यू टेक एलसीएम ओवर देयर, तो आपको फिर से क्या मिलेगा बेटा, minus pi/6। माइनस तो साइन के बाहर जा सकता है, sin pi/6 मतलब sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ sin 30 is 1/2, तो आंसर विल बी -1/2। ओके, यदि यहां पे प्लस होता, यदि यहां पे प्लस होता तो इसको मैं क्या लिख सकता, यदि यहां पे प्लस होता तो ये भी प्लस होता। इन दैट केस व्हाट वुड बी द आंसर, pi/3 plus pi/6। pi/3 plus pi/6 मतलब दिस इज 60 एंड दिस इज 30, तो 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ठीक है। तो यदि माइनस साइन है -1/2, प्लस साइन है तो वहां पर होगा तो कितना होगा, pi/3 plus pi/6, दैट इज sin 90, and sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की सेवा में, दैट इज cos इनवर्स ऑफ -√3/2 plus pi/6 is equals to question mark। सी सबसे इंपॉर्टेंट बात है cos इनवर्स। हमने पढ़ा था cos इनवर्स, cos जो होता है नॉन वेजिटेरियन होता है, माइनस खाता है, लेकिन cos इनवर्स माइनस के लिए बाहर भेजेगा किसको, पाई को भेजेगा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ √3/2 और साथ में प्लस pi/6, राइट। दैट मींस cos ऑफ पाई, cos इनवर्स √3/2, √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। कब होता है बेटा, 30 डिग्री पे होता है। कब होता है, 30 डिग्री पे। मतलब यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनना, पाई माइनस, ये कब होगा, 30 डिग्री पे होगा। ये कब होगा, -√3/2 का आप देख सकते हो, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ √3/2। और cos इनवर्स ऑफ √3/2 का मतलब होता है cos इनवर्स ऑफ cos 30 डिग्री, राइट। कितना होगा, cos इनवर्स ऑफ cos 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना, pi/6। बाजू में कौन बैठा है, pi/6। ये pi/6 से ये pi/6 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास cos pi, और cos pi का वैल्यू कितना होता है, -1। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज sin ऑफ cot इनवर्स x। मतलब बेसिकली मुझे क्या करना होता है कि cot इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, sin। और यहां पे दिक्कत ये है ना कि वेरिएबल यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, cot इनवर्स x इक्वल्स टू y लेट करोगे। इसके बाद का काम क्या होता है, cot y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, x। cot y इक्वल्स टू x का मतलब होता है x/1, और cot किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, बेस बाय परपेंडिकुलर। cos किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। सो ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा आपके पास, x² + 1। तो cot y यदि आप sin में लिखना चाहो तो sin y क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो y यदि ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनियस कितना हो गया,
x स्क्वायर प्लस 1, मतलब y को आप लिख सकते हो sin इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, मतलब जो आपने y लिया था cot इनवर्स x को आप लिख सकते हो sin इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से sin इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होके 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 समझ आ गया? चलिए, so here we have the last question for today, that is sin of 2 sin inverse of 0.8. sin के अंदर 2 भी आ रहा है, तो इसका एक क्लियर मतलब ये है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला, बिकॉज़ ये तो आपका एक एंगल होता है, एंगल मतलब थीटा, दैट्स एंगल मतलब थीटा, सो दिस इज बेसिकली sin 2 थीटा, राइट? sin 2 थीटा कितना होता है बेटा? 2 sin थीटा cos थीटा, जहां पे थीटा की जगह पे क्या ले रहे हो? sin इनवर्स ऑफ 0.8, राइट? मतलब कैन आई राइट 2 sin of sin inverse 0.8 cos of sin inverse 0.8, ये sin से ये sin कैंसिल होकर 0.8 दे देगा, लेकिन इस sin को मुझे कन्वर्ट करना है इन द cos, मैं डॉट लिखूंगा, ठीक है? इस sin को किसमें कन्वर्ट करना है? cos में, राइट? sin inverse 0.8 दैट मींस 4/5 यदि मैं y लेता हूं तो sin y की वैल्यू 4/5 आएगी, मतलब जो आपका परपेंडिकुलर है दिस इज 4 एंड जो आपका बेस है हाइपोटेन्यूज है दिस विल बी 5, देन ऑफ कोर्स दिस विल बी 3, तो cos y की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज से 3/5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos इनवर्स ऑफ 3.5 दैट इज 0.6, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो बेटा? cos इनवर्स 0.6, cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, दैट मींस 2 into 0.8 into 0.6, 8 6 48, दैट मींस 0.96 एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है? तो ये बेसिकली अब एंगल नहीं है, याद रखना ये वाला एंगल है, तो साइन ऑफ एनी एंगल विल गिव यू अ न्यूमेरिक वैल्यू, एक रेशियो देगा, ठीक है? वो कितना आ रहा है आपके पास? दैट इज 0.96. ओके, सो व्हाट आई वांट यू टू डू एज अ होमवर्क इज जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज छोड़े वो आपको करना है, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ cosec सेकंड कॉट, उसके डोमेन और रेंज निकालना है, और 11th क्लास के जितने भी फॉर्मूलेस आपको पता है फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग फॉर ट्रिग्नोमेट्री हमने जितने भी फॉर्मूलेस के थे, जितने आइडेंटिटीज पढ़े थे, वो सारा आपको याद होना चाहिए, बिकॉज़ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल यूज दोस आइडेंटिटीज टू कंटिन्यू. Okay, so that's all. Thank you.